When Brother Santosh was leading us into a time of prayer and worship, और जब भाई संतोष हमें आराधना में ले गए थे, when he started, वो क्या था, आत्मा डांस करवाना शुरू किया जब, when he started to lead us into dance, और जब वो हमें डांस करवाने लगे, I was really feeling seriously spiritual. और मैं उस वक्त बड़ी आत्मिकता के साथ खड़ा था. And then he said something फिर उन्होंने कुछ कहा that some people think that spirituality is only seriousness. कि कुछ लोग जो आत्मिकता है वो बड़े ही सीरियसनेस में ही And I was समझते very हैं, serious. और मैं बड़ा सीरियस था. But then the Lord reminded me something. फिर परमेश्वर मुझे एक बात याद दिलाया. Lord reminded me something. परमेश्वर ने कहा, King David, राजा दाऊद, he danced. उसने डांस किया, He danced and he was not even able to be mindful of his clothes. और वो इतना नाचा कि उसे पता नहीं चला कि उसके कपड़े फट When चुके the हैं. ark of the covenant was coming back to the Israelites, और जब इस्राएल में वाचा का संदूक आ रहा था, when the ark of the covenant which carried the presence of God, which was with enemy, was coming back to the Israelites, और वो वाचा का संदूक जो दुश्मनों के पास था, जो प्रभु की महिमा को लेकर आ रहा था, which came back to Israelites after a long span of और time, एक लंबे समय के साथ जब वो वापस आया इजराइल में, David became so happy that he danced. और दाऊद इतना खुश हो गया कि वो नाचने लगा. He danced. वो उसने नाचा, He danced. वो नाचा, He danced. वो नाचा. Hallelujah. हालेलुया. And I was like, हाँ मैं भी कर सकता हूँ. मैं कहा मैं भी कर सकता हूँ. Hallelujah. आमीन. He danced and even his wife started saying bad about him. और वो नाचा और उसकी पत्नी ने उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा. She said, "You are a king. How can you dance like this?" उन्होंने कहा तू राजा है और तू ऐसे कैसे नाच Just सकता few है. days back, I was watching a documentary. और कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, And that documentary was specifically on how David danced. और उसमें ये था कि दाऊद कैसे नाचा. And honestly, the way David danced was like this. और जैसे दाऊद नाचा था वो था ऐसे ऐसे. मैं बोला, अरे पंजाबी? अरे David पंजाबी निकला? आमीन. He was seriously, he danced because when Lord does something in your life, you dance with him, you cry with him, you smile with him, and he becomes your friend. और जब आपके साथ नाचेंगे रोएंगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा. You are like a child to him. और आप उनके लिए बच्चे के समान हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. How many of us are thankful this morning? और हम में कितने लोग आज की सुबह धन्यवादी हैं. You know, sometimes we are just thankful because the worship leader, pastor, or the neighbor is saying to be thankful. और ये हम कई बार तो धन्यवाद कि अगुआ कह रहा है या पास्टर कह रहे हैं कि खुश हो जाओ. And many times, I'll be honest, church. कई बार मैं बड़ा सच बोलता हूँ. Many times, including myself, we are sad from inside, but trying to be happy from outside. कई बार कहते हैं हम भी ऐसा करते हैं कि हम अंदर दुखी हैं लेकिन बाहर से खुशी महसूस But it's करते not हैं. coming from the heart. लेकिन वो हृदय से नहीं आ रहा होता. But if honestly we start thinking about the things that he has done for us. लेकिन अगर हम सच में सोचे कि जो उन्होंने हमारे लिए किया. I was just thinking about the pandemic season. और मैं वो महामारी का समय याद कर I रहा was था. just thinking about the pandemic season. और मैं वो महामारी के दिन याद कर रहा था. Different things happened. अलग अलग चीजें हुई. Different things happened. अलग अलग चीजें हुई. A girl's father who lost his leg एक लड़की उनके पिता ने पाँव को खो दिया. while walking back towards UP. और जब वो यूपी जा रहे थे, She came on a bicycle to pick her father. और वो साइकिल में अपने पिता को लेने के Pick her लिए, father. अपने पिता को लेने Few के लिए. days back, me and some of my friends, we rented a cycle from Sector 17. हम में से कुछ दोस्तों ने कुछ दिन पहले एक साइकिल को रेंट में लिया. 10 minutes we drove, we were tired. 10 मिनट चलाया और हम थक चुके थे. I was just imagining of girl which was probably this age. और एक लड़की जिनकी उम्र इनके समान होगी, She came from UP on a cycle to pick her father. और वो यूपी से साइकिल चला के अपने पिता को लेने के लिए, To pick her father. अपने पिता को लेने के That लिए. is one reason we should be thankful. और इसीलिए हमें धन्यवादी होना चाहिए. When the way India was, it was trying to do what we all leaders could be able to do. और हम जो दवे कली से कुछ कर रही थी, जो करना चाहती In the थी. night at 10:30, me and Brother Santosh went to deliver some ration to a guy who had taken twice from us. और देखिए हम 7:30 बजे एक भाई के पास गए जो पहले हमसे राशन ले चुका था. And Brother Santosh and me were talking कि इस बार अपन को कह देना कि यार जल्दी जल्दी ना मांगा कर. हम तो हम इस बार कह देंगे कि तू जल्दी जल्दी ना मांगा कर. The time we went to him, जब हम उसके पास गए, he came on a cycle. वो साइकिल में Sorry, आया था. last time he came on a cycle. पिछले वो साइकिल में आया था. This time he came from phase 2 all the way in the night at 10:30 because we were not free by walking. और वो चल कर 2 फेज से हमारे पास यहाँ आया And when था. we asked him where is your cycle, हमने पूछा तेरा साइकिल कहाँ है? he said मैंने साइकिल गिरवी रख दी है. उसने बोला कि मैंने साइकिल गिरवी रखा. And then he said that मैंने साइकिल इसलिए गिरवी रखी है क्योंकि मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है. क्योंकि उसने कहा कि उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है, इसलिए मैंने साइकिल को गिरवी रखा है. हमें thankful, we should be thankful. हमें धन्यवादी होना We should चाहिए. be thankful. हमें धन्यवादी होना If the चाहिए. Lord gave us twice or thrice times of food during the last 1 year, we should be thankful. अगर पिछले 1 साल परमेश्वर ने आपको 3 टाइम की रोटी दिया है तो प्रभु का धन्यवादी I हो. really ask you, how many of you are thankful from heart? मैं सच में पूछना चाहता हूँ कितने लोग अपने हृदय से धन्यवादी हैं. कभी कभी हमारे अंदर क्रोध होता है. हम परमेश्वर से अंदर ही अंदर बिना बताए नाराज होते हैं क्योंकि हम अपना फेवरेट आईफोन नहीं खरीद पाए. We get
we get disappointed because we were not able to buy our favorite latest iPhone, कई बार क्या होता है कि हम कुछ लेटेस्ट आईफोन नहीं ले पाए तो हम परमेश्वर से नाराज हो or जाते we हैं, were not able to buy our favorite car, या फिर हम अपनी वो पसंदीदा गाड़ी ना खरीद or our पाए, ancestors didn't leave a car or a house for us. या हमारे पूर्वजों ने ना घर छोड़ा ना गाड़ी छोड़ी हमारे But लिए। church, this morning we should really think. लेकिन आज की सुबह कली से हमें सोचना चाहिए, एक दिन में कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने पिछले साल में किया। आमीन, कितनी बार, मैं पूछता हूँ आज आपसे, कितनी बार हम उसका धन्यवाद ही करेंगे? आमीन, क्योंकि जितना मर्जी हम करें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आराधना चल रही थी, मैं वचन में जाने से पहले जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया मैं आपसे कर रहा हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ कहा, मैं शायद ट्रांसलेशन अभी बीच बीच में छूट जाएगा, बिकॉज राइट नाउ वट एवर इज कमिंग फ्रॉम हार्ट। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई ऐसा या कोई ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करता है, स्पेशली अपने मॉम डैड को मिस करता है, मॉम को मिस करता है, डैड को मिस करता है। आई डोंट नो, किसी कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर वालों का देहांत हो जाता है, पेरेंट्स का देहांत हो जाता है ना, एंड हम मिस करते हैं, वो उसको कहते हैं एब्सेंट फादर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के केसेस में क्या होता है कि हमारे माता पिता लाइव होते हैं लेकिन हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं होते, अब वो होकर भी हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं हो पाते, वो उनको कहते हैं पैसिव फादर। मुझे पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ आज कह रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो बार बार उदास होता है, क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है, आज परमेश्वर इस सुबह आपसे कुछ कहना चाहते हैं, दैट आई एम योर फादर एंड आई एम योर मदर, आई एम योर ब्रदर, आई एम ऑल दैट यू नीड। मैं वो सब हूँ, मैं तुम्हारा माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप में से कोई भी लोग हैं, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी बुरी यादें हैं जो आपके मन में हो, इस समय मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और मैं भी अपनी आंखों को बंद रखूंगा। लेकिन अगर आपके मन में ऐसी कोई भी बात है, आपके दिमाग में शैतान ने अगर कुछ बुरी यादें डाल दी हैं, सैड, आप बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं, आप वो नहीं महसूस करते कि आपको प्यार मिल रहा है, आप उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते, मैं चाहता हूँ आप स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठा लें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, आप स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठा लें, अपना हाथ उठा लें, अपना हाथ उठा लें, और इस समय पिता परमेश्वर अपने हाथ को आपके हाथ से स्पर्श करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने हाथ को हमारे माथे पे, हमारे हाथ पे, हमारे जीवन में डाल रहे हैं। इस समय परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा हूं, आई एम योर्स, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सच में धन्यवादी बन जाएं लॉर्ड फादर, हम दो मुही जिंदगी ना जिए लॉर्ड फादर, हमारे अंदर प्रभु जी कंप्लेंट ना रहे लॉर्ड फादर, प्रभु जी हमारे अंदर कोई गुस्सा ना रहे लॉर्ड फादर, हमारे तूने अपने वचन में कहा कि सिर्फ तू है जो इस पत्थर के दिल को लेकर एक मांस का जीवित हृदय दे सकता है। प्रभु जी हम एक नया हृदय मांगते हैं लॉर्ड, जो प्यार से भरा हो लॉर्ड फादर, जो प्यार से भरा हो लॉर्ड फादर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। डू यू नो इन द ओल्ड टेस्टमेंट, आपको पता है पुराने नियम में, if you went inside the curtain irresponsibly, अगर आप उस पर्दे के अंदर बिना सोचे समझे अगर अंदर चले जाएं, right then death will come to उसी you. समय आप मर जाएंगे। It's just because of the sacrifice of Jesus सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के कारण that curtain was torn apart. और वो पर्दा फट गया। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't take the spirit of God, the presence of God granted. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को आप हल्के में ना लें। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, amen. I'm going to share something from the word of God with all of you. और आप सबके साथ मैं वचन से कुछ बांटूंगा। We can all open the book of Exodus. हम सब निर्गमन की किताब We खोलेंगे, can all open the book of Exodus, निर्गमन की किताब खोलेंगे chapter number 17, और निकालेंगे 17वीं अध्याय verse number 8 onwards. और 8वीं आयत से Verse number पढ़ेंगे, 8 onwards. 8 से पढ़ेंगे। I'll read in English, he'll read in Hindi. If you want to read it from a Bible, that's fine, but please hear very carefully. और फिर चाहे आप, मैं हिंदी में बोलूंगा, वो इंग्लिश में बोलेंगे, अगर आप बाइबल में पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं। While the people of Israel were still at Rephidim, और जब वो उस समय रफीदम में ही थे, the warriors of Amalek attacked on Israelites. और फिर अमलेकियों ने उन पर हमला कर दिया। मेरे साथ मिलके बोलो, हमला, 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 हमला कर दिया। You know, sometimes the attacks that come on your life without telling you a prior notice. आपको पता है कई बार हमले जो बिना बताए आपके ऊपर हो जाते हैं। You know, just before that, the Egyptians attacked Israelites. और जिस क्षण
उन्होंने मिस्रियों ने इस्राएल पर हमला किया Israelites had a little idea about the attack that's coming. और जो वो हमला उन पे होने वाला था वो उनको फिर भी पता था, But this attack they had no idea about. और जब ये हमला हुआ तो उनको बिल्कुल पता नहीं They था, didn't know that Amalekites were coming. उनको नहीं पता था कि अमेरिकी आ रहे हैं। Now, when you research on Google that what is Amalekites, what were they in history? और अगर आप अमेरिका के बारे में अध्ययन करें, देखिए कि वो कौन थे। Amalekites were wild people, wild army. और वो बड़े ही जंगली किस्म के लोग और जंगली सैनिक थे। अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो पिंडारी सुना होगा। Similarly, Amalekites were the Pindari of that time. और उस समय के वो पिंडारी के समान थे। Now, the previous attack they had, Egyptians wanted to make them slave. और देखिए जो पिछला हमला हुआ उसमें मिस्री उनको दास बनाना चाहते थे, But Amalekites didn't want to make them slave only. लेकिन अमेरिकी उनको दास नहीं बनाना चाहते थे। Amalekites war style was पकड़ो मारो जो है ले जाओ. और वो ये करते थे, वो पकड़ते थे, मारते थे और जो भी था वो ले जाते थे। This was a deadly attack. और वो बड़ा ही खतरनाक हमला Came था, without notice. बिना बताए, Came without notice. बिना बताए। The more close you keep going to your promised land, और जब आप अपने वादे के स्थान पे जितना पास जाएंगे the deeper your attacks are going to be. तो उतने ही गहरे हमले होंगे Confusing your attacks are going to be. और आपके बड़ा अजीब से हमले होंगे, Harder your attacks are going to बहुत ही be. कठिन हमले How many होंगे। of you know what I'm talking about? कितने लोग समझते जो मैं बात कर रहा How हूँ? many of us have faced situations that we had no idea next week are going to come, tomorrow are going to come, next hour are going to come? हमें कितने लोग हैं जिनका ऐसे हालात होंगे, उनको पता ही नहीं कि अगले हफ्ते उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, Suddenly अचानक you हो get जाता a है। phone call. एकदम से फोन आता है, Suddenly someone comes to you. कोई आपके पास आता है Something that you didn't expect. जो आपने उम्मीद भी नहीं की Suddenly थी, something comes to me कुछ एक दिन से मेरे or पास you. आया। और Verse आपके number 9 we'll see what Moses did. हम फिर 9वीं आयत में देखेंगे मूसा ने क्या किया। Moses commanded Joshua. तब मूसा ने यहोशू से कहा, Moses commanded Joshua, choose some men to go out to fight the army of Amalek for us. Tomorrow I will stand at the top of the hill holding the staff of God in my hand. हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी चोटी पर खड़ा रहूंगा। Moses said, you go to fight. मूसा ने कहा तू लड़ने को जा, And while you are fighting, जब तू लड़ रहा होगा I will stand at the mount of God praying. और मैं चोटी पे खड़ा होऊंगा और प्रार्थना कर रहा I will हूँ, stand praying. मैं प्रार्थना कर I रहा will हूँ, stand praying. मैं प्रार्थना कर I रहा will हूँ, stand praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Hallelujah. How Hallelujah. many of you will stand when the fight comes? आप में कितने लोग खड़े होते हैं जब युद्ध चल रहा How होता many है, of you will pray when the wild attack comes? और जब जंगली हमला होता है कितने लोग प्रार्थना How करते many हैं? of you will choose to pray, not to fight only with the earthly things, but also you will choose to fight in the spiritual? और आपसे आप देखिए प्रार्थना करते हो, आपसे वो दुनिया की लड़ाई नहीं, लेकिन आप आत्मा में लड़ाई And लड़ते then हैं। it says, so Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron and Hur climbed to the top of the nearby hill to pray. और जिस क्षण में यहोशू वहां लड़ रहा था उस समय मूसा, हुर और हारून पहाड़ी की चोटी पर गए। Hallelujah. Hallelujah. मूसा ने जब देखा लड़ाई, when Moses saw that the fight is happening, Moses said, you choose some army and go to fight, and I will take 2 people and go to the mount and I will start praying. और जब मूसा ने देखा कि लड़ाई होने वाली तो उसने कहा कि तू सेना लेकर जाओ और मैं अपने 2 साथियों को लेकर पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए I will जाऊंगा। start praying. मैं प्रार्थना Verse करूंगा। number 11, listen to this very carefully. This is the entire message. और देखिए 11वीं आयत को देखिएगा बड़े ध्यान से। बहुत ध्यान से सुनिएगा. आमीन। As long as Moses held up the staff in his hand, और जब तक मूसा अपने हाथ में छड़ी को लिए उठाए खड़ा था, the Israelite had the advantage. और तब तक इस्राएल प्रबल हो रहा था। Hallelujah. हालेलुया। जब तक मूसा के हाथ प्रार्थना में खड़े थे, till the time Moses' hands were up in prayer, और जब तक मूसा के हाथ प्रार्थना में खड़े वो क्या थे, कर रहे थे? जीत रहे थे. Till the time Moses was praying, और जब तक मूसा प्रार्थना कर रहा था, Joshua was winning. यहोशू जीत रहा था। Till the time Moses was praying, जब तक मूसा his country was winning. उसका देश जीत रहा Till the था, time Moses was praying, जब तक मूसा प्रार्थना कर रहा था, God's army was winning. और तब तक परमेश्वर की सेना जीत रही थी। But the next part of this verse, अगर आप ये समझ जाए, आपकी आधी समस्याएं चले जाएंगी. आपको पता है, आमीन। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको मुंह पे कुछ डाले, हाथ में कुछ डाले. अगर आप इस आधे वचन को समझ जाएंगे, but whenever he dropped his hand in prayer, the Amalekites gained the advantage. और जब जब उसका हाथ नीचे जाता था तब तब अमेलेकी जीतते थे। So the thing was, when Moses was praying, और जब तक मूसा प्रार्थना कर रहा they है were winning. वो जीत रहे हैं। When Moses will feel tired, और जब मूसा थक जाता था Moses will not be able to pray anymore. तो वो जब तक प्रार्थना नहीं They कर will पाता start था losing. तो वो हारते थे। Church, there are some problems in your life that will only go till the
time you are praying. और कुछ समस्या आपकी कलीसिया तभी जाएंगे जब आप प्रार्थना करते रहेंगे। There are some problems in our life that will go only if we will start praying. और वो तभी जाएंगे समस्या कुछ जब हम प्रार्थना करते रहेंगे। Moses was the leader of Israel, मूसा उनका अगुवा था, but instead of going to fight, लेकिन लड़ने की he बजाय said, Joshua, I have full confidence in you. उसने कहा यहोशू मुझे तुम पूरा You भरोसा are है more than capable to fight in hands, और तुम लड़ सकते हो, मुझे पता है, but I am more than capable to fight in prayer. लेकिन मैं हूं कि मैं प्रार्थना करने जा सकता Your हूं। family needs one Moses. आपके परिवार का एक मूसा चाहिए, Your church needs one आपके Moses. कलीसिया का एक मूसा चाहिए, Your family, your life need one आपका Moses. परिवार, आपके जीवन का एक मूसा You चाहिए, yourself need to become Moses for others' और life. आपको भी किसी और के लिए मूसा बनना There है। are some problems in your life, I repeat, that will only go if you start praying. आपके जीवन समस्या तभी जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। Those battles cannot be won when you stop intercession. और देखिए वो कभी खत्म नहीं होंगे अगर आप रोक देंगे बिछवाई की When you प्रार्थना को। stop prayer, you will start losing. और देखिए जब आप प्रार्थना छोड़ देंगे आप हारेंगे। You know, I accepted Christ in 2012. मैं 2012 में प्रभु को ग्रहण किया In 2013, our family got a court case. और 2013 में हम पर एक कोर्ट केस हुआ। Yeah, when you accept Christ, as near as you keep going every year, the greater the level, greater the devil. और देखिए जब आप प्रभु ग्रहण के जितना आप पास जाएंगे उतना ही समस्या भी बढ़ती जाएंगी। कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रभु में आ गई, अब तो हनीमून शुरू, आमीन अब मैं बस बैठूंगी, परमेश्वर करेंगे, जादूगर सम्राट बन जाएंगे सब। आमीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, तो पहली बात आप यहीं पर गलत हो। आमीन। परमेश्वर में आने के बाद हर स्तर पर जितना आपका स्तर बढ़ता जाएगा उतना वार का स्तर भी बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द लेवल, ग्रेटर द डेविल वी विल हैव टू फेस। और देखिए जितना बड़ा स्तर होगा उतना ही बड़ा शैतान होगा हमें सामना करने के In लिए। our family also there were times when I couldn't pray. और कई बार मेरे परिवार में मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। There were times I didn't feel like prayer. मुझे लगता नहीं था कि मैं प्रार्थना करूं। I used to feel angry with God. मुझे प्रभु से गुस्सा आता I was था। like, Father, पिता, till the time I was not I hadn't accepted you, I hadn't baptized myself, there was no court case entire our family. और मैं कहा कि प्रभु जी मेरे बपतिस्मा नहीं था, मैंने आपको ग्रहण नहीं किया, तब तक कोई अदालत का केस नहीं था। मुझे नहीं याद कि मेरे जीवन शैली में परिवार के ऊपर कोई केस पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद आफ्टर आई एक्सेप्टेड क्राइस्ट, और जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, a severe court case, बहुत ही खतरनाक केस, tension in family, बुरा चिंता परिवार में, frustration in family, बहुत ज्यादा निराशा and frustration in my heart. और मेरी जिंदगी में भी। हमें समझने की जरूरत है। अपने पड़ोसी से कहो हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। सच में we need to understand that there are some battles that will only go through repetition of prayer. कुछ समस्याएं हमें समझ तभी जाएंगे जब हम बार बार प्रार्थना करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं एक बार करता देती और कि नहीं और ही करा विश्वास नाल की सी। मूसा जब तक प्रार्थना कर रहा था वो लड़ाई जीत रहे थे, जैसे ही मूसा प्रार्थना रोकता था वो लड़ाई हार रहे थे। जब तक आप जीत ना जाओ, प्रार्थना छोड़ ना जाओ। हालेलुया। टिल द टाइम यू कीप प्रेइंग, जब तक आप प्रार्थना करते रहेंगे, यू कीप विनिंग। आप जीतते रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी विनर्स? कितने लोग विजेता होना हाउ चाहते मेनी ऑफ हैं? यू वांट टू बी विनर्स? कितने लोग विजेता होना चाहते हैं? कोई ऐसा जो कहे नहीं मैं हार दी ठीक हां, उथे फिर मैं हार जानी हां। कोई ऐसा है जो हारने के लिए प्रभु में आता है? प्रभु में अगर हम आते हैं तो केवल और केवल प्रभु की एक योजना है हमारे लिए, और वो है जीत। एक साथ मिलके एक आवाज में बोलो जीत। और जीत प्रार्थना में है। द विनिंग इज इन प्रेइंग। और देखिए जितना प्रार्थना में है, द विनिंग इज इन प्रेइंग। जितना प्रार्थना में है। There are a few things I want to share with you, और आपसे मैं कुछ चीज बांटना चाहूंगा, which we need to do when problems come to our life. वो तब करना जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं। First thing, even before you do praying, और प्रार्थना करने से पहले, how many of you want to know prayer, what to do before praying? आपको कितना पता है कि प्रार्थना से पहले क्या करना How है? many of you want to know what to do before praying? आप में तो लोग कितना जानना चाहते हैं कि प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? एक ही जानना चाहते हो तो मैं अकेले फोन करके बता दूंगा। सब जानना चाहते तो बताइए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं यहाँ पर, है ना? जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए? हालेलुया। The things that you need before you pray, you need to plan. और देखिए प्रार्थना करने से पहले योजना बनानी है। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मूसा को पता लगा हाय अमलीकी आ गए, चलो सारे भजिए। या उसने नहीं किया कि अमलीकी आ गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुसी देख लो अपना बोरिया बिस्तरा बंदो। नहीं, उसने पहले प्रार्थना की मीटिंग का टाइम डिसाइड करने से पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने जोशुआ को कहा, जोशुआ तू बंदे तैयार कर। होते ना जब पंजाबियों में लड़ाई होती है, ओ बंदे लेके आ जा। उसको पता था जोशुआ बंदे तैयार कर सकता है, मैं प्रार्थना कर सकता हूं। जो आप कर सकते हो पहले वो करो, जो आपकी जिम्मेदारियां है। अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे, एक व्यक्ति ढूंढो। मेरे साथ मिलके बोलो, एक व्यक्ति ढूंढो।
एक व्यक्ति ढूंढो, हो सके तो 2 ढूंढो, हो सके 3 ढूंढो, 4 ढूंढो, क्योंकि प्रभु ने जो काम हमारे लिए रखा है वो आसान नहीं है। आसान नहीं था मूसा के लिए, मूसा के लिए आसान नहीं था जंगली जानवर जो आपकी बीवी बच्चे भी काट के खा जाएंगे उनका सामना करना। लेकिन मूसा ने बिना समय वेस्ट करे यहोशू से कहा, यहोशू तू बंदे इकट्ठे कर। अब ये ना हो कल को कोई समस्या आ जाए पहले बंदे इकट्ठे करने लग जाओ। उस बात को समझो, उन पे वार हो रहा था, पता लगा बैंक वाले पैसे मांगने आ रहा है, बंदे इकट्ठे करो, पास्टर ने कहा था। ऐसे मत करना। जिस तरह की लड़ाई उस तरह की पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। हालेलुया। द वे योर बैटल इज गोइंग, योर प्लानिंग शुड गो आल्सो इन दैट मैनर। और देखिए जैसे आपकी लड़ाई है वैसे ही आपकी योजना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मोसेस फर्स्ट प्लान्ड, पहले मूसा ने योजना then बनाई, he chose who will go to pray, who will go to fight। फिर तो सोचा कि कौन प्रार्थना के लिए जाएगा, कौन लड़ने के लिए जाएगा। सोचो अगर मूसा कहता कि इदा कर दे, मैं अभिषिक्त हां, हुर भी अभिषिक्त है, एरन भी अभिषिक्त है, असि लड़ लेने, तुसी प्रार्थना करो, तुसी वैसे करदे नहीं हो। सोचो वो प्रार्थना कर रहे होते, पीछे मेले का तलवार लेकर आ रहे होते। जो आपके जीवन में जिम्मेदारी है उनको पूरा करने के लिए सही व्यक्ति चुने। अपनी जिम्मेदारी से भागकर प्रार्थना मत करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके प्रार्थना करें। ये एक रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं जो हमारे घर में जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा प्रार्थना करती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, वो जिम्मेदारी पूरी करके प्रार्थना करती है। और यही सही तरीका है, प्रार्थना में जाने से पहले पीछे की प्लानिंग करके जाना। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। अपने जीवन में पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, प्रार्थना का समय नियुक्त करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियां भी नियुक्त करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि कोई जीवन में कुछ मसला हुआ तो चर्च छोड़ के पहाड़ों में रहने चले गए, मैं प्रार्थना करना ऐसी पास्टर जी, मैं पहाड़ा से आया, घरे दसिया नहीं, किसी ने फोन बंद है, बेच के इधर टिकट करा के आ गया, वापस पता नहीं कितना जाना है। नहीं, अपनी जिम्मेदारी चाहे चर्च की हो चाहे घर की हो उसको सीरियसली लेना है। मेरे साथ मिलकर एक आवाज में बोलो, सीरियसली। नो मैटर विच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, which responsibility you have, चाहे आपके ऊपर कोई भी रिस्पांसिबिलिटी क्यों ना हो, take it seriously, तो उसे बड़े ध्यान से even देखें। if it is of home चाहे वो घर की हो or if it is of church। चाहे वो कलीसिया की हो। Moses didn't run away from his responsibility। और देखिए वो अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं, He planned, उसने योजना बनाई, उसने योजना बनाई, उसने योजना बनाई। एक चीज जो हमें करने की जरूरत है, प्रार्थना का समय प्लान करें, प्रार्थना का समय प्लान करें, प्रार्थना का समय प्लान करें। हालेलुया। बात क्या है कि हम प्रार्थना को जिस तरह हम पंजाबी लोग खाने को लेते ना, जब भुख लगी खा लांगे, जिथे वधिया मोमोज की रेडी मिल गई खा लांगे, जिथे लंगर मिल गया खा लांगे, जेड़े चर्च च खाना मिल गया उत्थे चल जाएंगे। नहीं, यहाँ तो सब पवित्र लोग आते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपको पता है डाइटिशियन के पास अगर आप जाओ तो एक चीज जो डाइटिशियन आपको बोलेगी ना, पहली बात, पैसे लेने के बाद, मैं बिना पैसे दिए बता रहा हूँ आपको, हालेलुया, एक चीज जो डाइटिशियन आपको बोलेगी ना कि अगर आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे है तो अगले दिन भी 8 बजे होना चाहिए, उससे अगले दिन भी 8 बजे होना चाहिए। अगर आपका लंच 2 बजे है तो अगले दिन भी 2 बजे होना चाहिए, अगले दिन भी 2 बजे होना चाहिए। लगातार एक टाइम शेड्यूल बनना चाहिए। अगर आपका डिनर का टाइम रात के 8 बजे है तो एक रात 8 बजे खा के अगले दिन 12 बजे खा के कहोगे, प्रभु मैं पतली क्यों नहीं हो रही, तू डाइट नहीं ठीक खा रही। उसी तरह हमारी प्रार्थना की एक डाइट है। मेरे साथ मिलकर बोलो, प्रार्थना की डाइट। एक हमारी प्रार्थना की डाइट है जो हमें बनानी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि जद मूड कर लिया प्रेयर कर ली, लेकिन आपका प्रार्थना का समय डिसिप्लिन का समय होना चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन चिट्टे कपड़े पाके सिर ढक के घूमते रहे, प्रार्थना कर नहीं, सारा दिन चुगलियां करते रहे, तो कहां से आपकी लड़ाई जीतोगे आप? हालेलुया। एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। मेरे साथ मिलके बोलो, एक समय, एक समय, एक समय। कितने लोग चाहते हैं कि प्रार्थना के एक शेड्यूल बनाए, अपने हाथों को स्वर की ओर खड़ा करें, इसी समय, इसी समय, इसी समय अपने सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी एक प्रार्थना का समय। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रार्थना का एक समय बना दो परमेश्वर, हमें हमारे इनडिसिप्लिन लाइफ से बाहर करो लॉर्ड फादर, इनडिसिप्लिन लाइफ से बाहर करो लॉर्ड फादर। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें डिसाइपल बनने के लिए कहा। इससे पहले कि हम पास्टर बने, भविष्यवक्ता बने, प्रेरित बने, जो कुछ भी बने, पहले उन्होंने जो हम सबको बनने के लिए कहा वो है डिसाइपल। और डिसाइपल में जो एक बात होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। लॉर्ड वी प्रे फॉर डिसिप्लिन। सब लोग स्वर की ओर हाथ उठा के, प्रभु जी मेरे जीवन में अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन यीशु के नाम में। प्रभु जी इसी समय पवित्र आत्मा से वायदा करेंगे। कल किस समय आप प्रार्थना कर रहे होंगे, किस समय आप वेदी में समय बिताएंगे, किस समय अपने कलीसिया को उठाएंगे प्रभु के पास, किस समय आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, किस समय अपने परिवार को भी आगे लेकर आएंगे, किस समय आप वेदी पर बैठेंगे, इसी समय वायदा करें, वायदा करें, वायदा करें परमेश्वर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सच में प्रभु जी हम अनुशासित हो जाए इस एरिया में, जीवन के यीशु के नाम से। आमीन। द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक विद यू, और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज पावर इन लिफ्टेड हैंड्स। आपको पता है खड़े हाथों में सामर्थ है। देयर इज पावर इन लिफ्टेड हैंड्स। उठे हुए हाथों में सामर्थ है। मेरे साथ मिल के बोलो, उठे हुए हाथ। कभी कभी कलीसिया में होता है कि बेचारा वर्शिप लीडर या पास्टर या जो भी शेयर करने आया वो सबको कहते हैं आओ हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और यहाँ पर पता क्या है कि यहाँ पर खड़े होने का ना, पास्टर सोहन विल रियली एग्री विद मी, यहाँ पर खड़े होने की एक ऐसा अभिषेक है, जो कोई भी यहाँ पर वेदी पर आता है अगर वो एक सच्चे मन से आया है, यहाँ पर खड़े होने के बाद ना आपको किसके जीवन में क्या चल रहा है उसका आत्मा में अनुभव होने लग जाता है। और कौन यहाँ बैठा सच में परमेश्वर के वचन के लिए आया और कौन यहाँ बैठा लड़कीबाजी के लिए आया, उसका भी आपको अंदाजा हो जाता है। और जब हम यहां से कहते हैं इसी समय सब हाथ खड़े कर कर प्रार्थना करेंगे, इसी समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रभु बैठ के नहीं सुनता। अरे परमेश्वर आपका इंटरनेट नहीं है, जहां ले जाओगे वहां चलेगा, जैसे चलाओगे चलेगा। हालेलुया, आमीन। जब कलीसिया में कोई आकर कहता है कि क्यों ना हम हाथ खड़े कर कर प्रार्थना करेंगे, आप याद करो मूसा को, वो तब तक लड़ाई जीत रहा था जब उसका हाथ खड़ा था। इससे मैं चाहता हूं हम सब अपने हाथों को खड़ा करेंगे, हाथों को खड़ा करेंगे। जस्ट इमेजिन, अब जरा सोच के देखें, जितनी देर आपके हाथ इस समय प्रार्थना में खड़े, आपकी जीवन की समस्याएं जा रही हैं। जितने समय आपके आंखें बंद है, हाथ दिल से स्वर की ओर खड़े आप प्रार्थना करें, आपकी समस्याएं जा रही हैं इसी समय, इसी समय, इसी समय। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस समय अपने लोगों के लिए कुछ दर्शा रहा है। प्रभु इस समय यहाँ पर बैठे कुछ लोगों के लिए कुछ बता रहा है। जो भी पवित्र आत्मा में आएगा मैं वो सच्चे मन से बताना चाहता हूँ। इसमें ना मैं कम कर सकता हूँ ना ज्यादा कर सकता हूँ। सब लोग अपने हाथों को स्वर की ओर बढ़ाए रखेंगे इसी समय। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा मुझे इस समय ऐसा कह रहा है कि हम में से कुछ लोग हैं और हम जानते हैं कि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, शॉर्ट टर्म गोल मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। और यहाँ पर ये मत सोचना जो अमीर है वो मटीरियलिस्टिक, जो गरीब है वो मटीरियलिस्टिक नहीं। यहाँ पर आप चाहे आमदनी आपकी कम हो चाहे जॉब ना हो, लेकिन मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ कुछ लोगों के ऊपर दुनियावी पना हावी हो रहा है। अगर आप उसको सच में तोड़ना चाहते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और कहें यीशु के नाम से इसी समय, यीशु के नाम से इसी समय, यीशु मसीह के नाम से इसी समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, वी थैंक यू। प्रभु जी इसी समय दुनिया की हर एक बात, दुनिया की हर एक लालसा प्रभु जी हमारे जीवन से हट जाए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए रखेंगे और याद करेंगे मूसा को, जब तक उसके हाथ खड़े थे वो जा रहा था, इज़राइल विजय की ओर जा रहा था, इज़राइल वायदे की जमीन की ओर जा रहा था। कुछ समय हाथों को खड़े रखेंगे। अपने परिवार की सबसे बड़ी समस्या लेकर आओ इस समय परमेश्वर के आगे, अपने दिल की टेंशन परमेश्वर के आगे लेकर आओ। इसी समय समर्पित कर दो, इसी समय समर्पित कर दो। कलीसिया हाथों को ऊंचा उठाओ और मैं चाहता हूं कुछ सेकंड्स के लिए सब अपने स्थानों पे भी खड़े हो जाएंगे। हम आलस नहीं महसूस करेंगे, हम इसमें कुछ छोटापन महसूस नहीं करेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे अपने इस समय। ये समय के स्वर्ग यहां पर खुलने जा रहा है। हालेलुया, स्वर्ग यहां पर खुलने जा रहा है। आप आज के दिन में गवाहियां देखने वाले हैं। आज के दिन में गवाही देखने वाले हैं। किसी के घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें इसी समय। अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखे, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखे। बाकी सब स्वर की ओर हाथ रखे। जिनके दर्द है वो घुटनों की ओर हाथ रखे, घुटनों के ऊपर हाथ रखे। यीशु के नाम में चंगाई इसी समय, यीशु मसीह 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 के नाम में। दर्दें जा रही हैं, दर्दें जा रही हैं, ब्लॉकेजेस जा रही हैं, दर्दें जा रही हैं, दर्दें जा रही हैं। जिनके पीठ में मांस था उनके लिए प्रार्थना करेंगे इसी समय। जो गिल्टी कह रहे थे उस गिल्टी को यीशु के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हो जब हम प्रार्थना करते हैं तो चीजें होती है? कितने लोग विश्वास करते हो यीशु का नाम वो पासवर्ड है जो हर ताले को खोल सकता है? कितने लोग विश्वास करते हो? हाथ को स्वर की ओर खड़ा करो। जिस भी भाई के पीठ पर गिल्टी थी मिलकर बोलेंगे यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए,
चंगाई आ जाए संपूर्ण रीति से। हालेलुया। कुछ लोग जो विचलित है इस समय में, आज के दिन यहाँ पर आए विचलित है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई गगन के लिए एक वचन परमेश्वर मुझे इसी समय दे रहे हैं। ब्रदर गगन के लिए एक वचन इसी समय दे रहे हैं। Psalms 91 चैप्टर नंबर 91 वर्स नंबर 7, भजन संहिता 91 का 7। Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. वचन कह रहा है कि 1,000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, लेकिन दुष्ट तुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। यहोवा कहते हैं तू अपनी आंखों को खोल और देख, मैं दुष्ट को सजा दूंगा। 1,000 तेरे इधर गिरेंगे, 10,000 उधर गिरेंगे, लेकिन तुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, तुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते रहेंगे। कुछ समय हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमें और सामर्थ्य दिखा, हमें और सामर्थ्य दिखा। इसी समय दुनिया की बातों को छोड़ दे, हर एक बात को छोड़ दे, हाथ को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दिल को खोले परमेश्वर के आगे, दिल को खोले परमेश्वर के आगे। कर्जा इस समय कुछ लोगों का कर्जा दूर हो रहा है, कर्जा दूर हो रहा है, कर्जा दूर हो रहा है। मैं महसूस कर और रिसीव कर ले यीशु के नाम में, सच में भारी अभिषेक। कर्जा यीशु के नाम में। जितने लोगों के जीवन में कर्जा है, हाथ को ऊंचा खड़ा करें, ऊंचा खड़ा करें, ऊंचा खड़ा करें। यीशु आज से आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। यीशु आपके जीवन में आज से, यीशु के नाम में। आपका चाहे सिबिल स्कोर बिगड़ गया हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों में आपका स्कोर सुधर गया है यीशु के नाम में। हालेलुया जीसस। मायने नहीं रखता हमारा सिबिल स्कोर क्या हो, स्वर्ग में हमारा स्कोर क्या है ये मायने रखता है। एक बार और, जितने के जीवन में कोई भी कर्जा है, हाथ स्वर की ओर खड़ा करेंगे, हाथ स्वर की ओर खड़ेंगे। आज गवाहियां आने वाली हैं, आज टेस्टिमनीज आने वाली है, आज परमेश्वर कुछ काम करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में कर्जा टूट जाए, प्रभु जी माफ हो जाए, तू प्रोवाइड कर दे। मेहनत करना सिखा लॉर्ड फादर, हम जोड़ने पाए, सेविंग करने पाए लॉर्ड फादर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ समय हाथों को स्वर की ओर खड़ा रखेंगे। कोई हमारे बीच में आज कोई बहन है जिनके परिवार में बहुत अशांति है, परिवार में बहुत अशांति है। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आज यहाँ पर जब आप आई हैं तो आपके मन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है, कोई अशांति आपके मन में है। और आपके मन की जो शांति हो आपके परिवार में चलते झगड़े, परिवार में चलते झगड़े, परिवार में चलते विवादों को लेकर है। हाथ को स्वर की ओर उठाएं, वो बहन जहां भी हैं, वो बहन जहां भी, हाथ को स्वर की ओर उठाएं। और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में आपके खड़े हाथों के द्वारा शांति लाने वाले हैं, आपके ऊंचे हाथों के द्वारा शांति लाने वाले हैं, आपके प्रार्थना करते हाथों के द्वारा शांति लाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक परिवार में प्रभु जी हम शांति मांग लेते हैं। तेरा वचन कहता है तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का राजकुमार है। प्रभु इसी समय हमारे जीवन में तेरी शांति यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। कुछ एक दो बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, इन्हीं आयतों में से। आपको पता है, यहां तक मैंने बता दिया, जब तक प्रार्थना चल रही थी तब तक जीत रहे थे, जब प्रार्थना रुक रही थी वो हार रहे थे। कितने लोग समझ गए इस बात को? तो अगली बार जब आप हारने लगो ना, आपके जीवन में कुछ हार आ रही हो, पहली पास्टर को फोन करने से पहले अपने आप से पूछना, प्रार्थना करी, वचन खोला, उपवास किया, या फिर सिर्फ दुनियावी चीजें करी? ये बात पहले पूछना। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब मूसा का हाथ नीचे जा रहा था, वो हार रहा था, तो उसने क्या किया? When Moses' hands was going down, they were losing. What did Moses do next? और तब मूसा ने क्या किया जब उसके हाथ नीचे जा रहे थे? Then Moses called and his friends who were there with him, Aaron and Hur, came to him. और फिर उसने अपने मित्र एरन और हुर को बुलाया। So when Moses' hands grew weary, और जब उसके हाथ थक गए, Aaron brought a stone for them. और हारून उसके लिए एक बड़ा पत्थर लेकर They आया made Moses sit on the stone. और उन्होंने उसको बिठाया पत्थर पे। And Aaron holded his one hand. और हारून ने एक हाथ को उठाया And Hur holded his second hand. और हुर ने दूसरे हाथ को उठाया और वो उसको पकड़ के बैठे रहे, उसको सहारा देते रहे, प्रार्थना नहीं रुकने दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लड़ाइयाँ आपके जीवन में ऐसी होंगी, आप प्रार्थना करते हुए थक जाएंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, ये मूसा वो व्यक्ति है
जो 40 दिन परमेश्वर के साथ आमने सामने बैठा था, अगर वो थक गया, हम कोई चीज़ नहीं है, हम कोई चीज़ नहीं है। मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ, पास्टर सोहन लाल जी मेरे से एग्री करेंगे, कभी कभी हम क्रिश्चियन बुक्स खरीदते हैं। जॉन हाइड का नाम सुनाओ किसी ने, विलियम विगल्सवर्थ का नाम सुनाओ, ये मिशनरीज का नाम सुनाओ, स्मिथ हडसन टेलर का नाम सुनाओ, पॉल योंगिचो का। इनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो इनका जीवन है 10 घंटे की प्रार्थना, 8 घंटे की प्रार्थना, 12 घंटे की प्रार्थना, एक दिन नहीं, डेली डेली डेली। और मैं सच बताऊं, इनकी किताबें जब भी मैं पढ़ता था, खुश तो मैं होता था, अंदर से दुखी भी होता हूं कि मेरी प्रार्थना 10 घंटे नहीं है, ना 12 घंटे है, 8 घंटे भी नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं, हाँ पास्टरों के प्रेयर नहीं करते तो इतना सारा दिन प्रेयर करा करो। हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। लेकिन मूसा के अगर हम जीवन को देखें, एक बात समझेंगे, मूसा भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मूसा 12 घंटे नहीं कर पा रहा था प्रार्थना में। तो अगर आप भी प्रार्थना नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने करना है, आपके आसपास वाले लोग प्रार्थना वाले होने चाहिए। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपके करीबी मित्र कौन है, आपके सबसे पास वाले बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, आपके 1 2 5 लोग जो आपके पास में, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जिनके साथ आप रोज जिंदगी बिताते हो, रोज बात करते हो। जैसी उनकी प्रार्थना की जिंदगी होगी वैसी आपकी प्रार्थना की जिंदगी बनेगी। और कहीं कहीं अगर दुख के उसमें अगर आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो अविश्वासी है, आपके दोस्त अविश्वासी है, आपका बेस्ट फ्रेंड अविश्वासी है, कईयों का बॉयफ्रेंड अविश्वासी होता है, हस्बैंड अविश्वासी, फिर बच्चे भी अविश्वासी, एक टाइम आएगा आपकी आग बुझ जाएगी और उनकी आग लग जाएगी। हालेलुया। जब मूसा प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, उसके परिवार वाले लोग थे दोनों। आपको पता है कि आपको पता है उसके परिवार, एक उसका सगा भाई था, एक उसकी बहन का हस्बैंड था, दोनों उसके ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर। जब एक परिवार मिलके प्रार्थना करता है, भारी स्वर्ग खुल जाता है। मैं सच में आपसे कह रहा हूं, जब भी मैं, मम्मा और पापा मिलके किसी विषय के ऊपर घर पे प्रार्थना कर देते हैं ना, हमारे घर में इतना सा टेबल है, और हम जब भी कोई परिवार में समस्या होगी, अगर हम परमेश्वर को पहला दर्जा देकर मिलकर अगर उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे मिलकर तीनों, यीशु के नाम में परमेश्वर ये जो समस्या आ रही है हमें उससे बचा, हम सही चुनाव करें, पाप में न जाएं, प्रभु जी इसी समय कैंसिल करते हैं, ज्यादातर वो समस्या चले जाती है यीशु के नाम। आई वुड से अभी तक 10 बार अगर हमने मिलके परिवार ने प्रार्थना करी है ना तो बिंदास। कुछ समय से हम मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जिस दिन हमने प्रार्थना करी अगले ही दिन वो हमने होते हुए देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि शैतान वार नहीं करता, वो करता है। हमें प्रार्थना करते रहनी चाहिए। परिवार दूर रहता तो फोन पे प्रार्थना करो, परिवार साथ रहता तो 5 मिनट निकालो परमेश्वर के लिए, 10 मिनट, आधा घंटा निकालो। कितने लोग वादा करते हैं कि परिवार के बीच में प्रोत्साहन देंगे प्रार्थना का। अभी बैठकर कुछ लोग ये सोचेंगे, मेरा पति ऐदा दा आ, वो कहता कि नहीं मैं दारू ही पीनी है, मेरा पति लेट आंदा है, बच्चे बहुत है। नहीं, आप कुछ हस्बैंड ऐसा बोलेंगे, मेरा प्रार्थना का मूड होता है, वो सास भी कभी बहू थी लगा के बैठी होती है और बहू सास बन जाती है। नहीं, अगर दूसरा व्यक्ति प्रार्थना नहीं लेकर आ रहा, आप एक बार बोलिए तो सही, क्या हम आज 5 मिनट मिलके प्रार्थना कर सकते हैं? जब कोई भारी समस्या, आप एक बार बोलिए तो सही, क्यों ना यार 2 मिनट हम बैठे सब मिलकर अपने हाथों को चेन प्रेयर करें, मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, अगली बार परिवार में कोई समस्या आए, मैंने ये रियलाइज किया कि जब भी मेरी फैमिली मिलकर उसके ऊपर प्रार्थना करती है ना, हम अकेले नहीं कर पा रहे होते, अकेले हम थक जाते हैं, अकेले हम कर नहीं पाते, अकेले उत्तर नहीं आ रहा होता। लेकिन जिस समय परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना कर जाता है तो स्वर्ग खुल जाता है यीशु के नाम में, स्वर्ग हिल जाता है अपनी जगह से, और आप अपना ब्रेक थ्रू पाएंगे जब आपके परिवार में मिलकर प्रार्थना करनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अभी कुछ लोग बैठ के कहेंगे मेरे परिवार में विश्वासी नहीं है। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? मेक सम प्रेयरफुल फ्रेंड्स। दुनियावी दोस्तों के साथ मत घूमो, जो पाप की बातें करते हैं मत घूमो, जो गंदी फिल्मों की बातें करते हैं उनके साथ मत घूमो, जो बात ही गालियों से करते हैं उनके साथ मत घूमो, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ घूमो। हालेलुया। कितने लोग वादा करना चाहते हैं स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाएंगे इसी समय। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको पता है आपकी प्रेयर लाइफ ड्रेन कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए और प्रार्थना में चले जाइए। आंखों को बंद करेंगे, हाथ को ऊंचा स्वर्ग की ओर उठाएंगे, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं,
प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अगर हमारे जीवन में, प्रभु जी अगर हमारे जीवन में प्रभु जी तेरे चुने हुए लोग नहीं हैं, तो प्रभु जी हम उनके साथ अपना ये प्रेशियस लाइफ शेयर ना करें लॉर्ड फादर। तो हमें हमारे जीवन में हमारे एरन और हुर को प्रोवाइड कर, हमारे हारून और हुर को प्रोवाइड कर प्रभु जी हमारे जीवनों में लॉर्ड फादर। सही लोग, सही सुझाव, सही प्रार्थना, सही गाइडेंस, सही बातें, सही प्रार्थना का जीवन यीशु के नाम में मांग लेते हैं इसी समय मिलके बोलेंगे ऊंची आवाज में आमेन, आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज आशीषित हैं? अब यहाँ से आप आशीष ले जाएं या नाचे भी, आराधना भी किया, लेकिन अगर आप घर जाके प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो आप उन लोगों में से एक बन जाएंगे जो वचन सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। वो ऐसे लोगों के समान है जो आईने में देखते हैं और यहाँ मुंह करते ही अपना चेहरा भूल जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम में से एक भी ऐसा ना बने। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, वर्स नंबर 13 कहता है, जोशुआ डिफीटेड अमेलेक एंड हिज पीपल विद स्वॉर्ड, नॉट अ टेम्परेरी सेटबैक बट टोटल डिफीट। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमेलिकों को तलवार के बल से हरा दिया। पूरी तरह से, मेरे वाले ट्रांसलेशन में लिखा है कि टेम्परेरीली नहीं, संपूर्ण रीति से खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन की समस्या संपूर्ण रीति से खत्म हो, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप अपने आप को चैलेंज करें और देखें आप कितनी देर प्रार्थना में रह सकते हैं। जब आपका टैंक पूरा हो जाए, दूसरों के साथ प्रार्थना करनी शुरू करें। जब उनका टैंक शुरू हो जाए, सब मिलकर प्रार्थना करनी शुरू करें। आप अपने आप को चैलेंज करें। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमेश्वर हमारे जीवन में दूर ना करेंगे। टेम्परेरीली कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा मैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, अपने परिवार ने बेच दिया मिस्रियों को। फिर वहां थोड़ी सी तरक्की हुई तो जहां पर काम कर रहा था वो लेडीज ने फेक रेप केस डाल दिया, रेप का केस डाल दिया, बेचारा जेल में। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है ना। लेकिन एक समय आया कुछ समय बाद जब यूसुफ 44 के दाहिने हाथ में, राजा के दाहिने हाथ में बैठा था और पूरे संसार में अकाल पड़ा था, और उसके वही भाई, वही परिवार जिसने यूसुफ को बेच दिया था, वो यूसुफ से खाना मांगने आए थे। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म की देखो। हालेलुया, हालेलुया। दूर की बात देखो। मैं आपको सच में कहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन परमेश्वर ने वेस्ट किया हो। शायद हम में से कई लोग अगर यूसुफ की जगह होते, फेक रेप केस लेकर हम जेल में बैठे होते, गालियां दे रहे होते अपने चर्च को, अपने पास्टर को। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। यहाँ बैठे आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो आदमी का, पर सच में बताऊं, शायद हम हैंडल ना कर पाते फेक रेप केस अपनी लाइफ में। फेक रेप केस तो छोड़ो, एलिगेशंस नहीं हैंडल कर पाते मेरे जैसे लोग। जरा सोचो, जब केस डल जाए, आप जेल के अंदर है, लेकिन उस व्यक्ति ने धार्मिकता को नहीं छोड़ा। जब कोई गैर औरत उसके पास आई और कहा कि तू आ मेरे साथ सो जा, उसने कहा कि तेरे हस्बैंड ने मुझे सब चीज़ों का राज दिया है, लेकिन मैं किसी की पत्नी को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं यहोवा से डरता हूं, मैं यहोवा से डरता हूं, मैं यहोवा से डरता हूं। आप ये मत देखिए आपके शॉर्ट टर्म सर्कमस्टांसेस क्या है, आप ये देखिए कि आप कहाँ तक फेथफुल है। अगर आप फेथफुल रहेंगे, जितनी ज़्यादा मुसीबत आपके जीवन में आएगी, उतना ऊंचा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। यूसुफ के जीवन में रेप केस आया, बेच दिया परिवार ने, पिता को बोल दिया, वो तो मार खाया, जानवर मार गए उसको। लेकिन एक समय आया, उस समय की वर्ल्ड की सुपर पावर का फाइनेंस मिनिस्टर यूसुफ बन गया। एक मिस्री जगह जहां पर यहूदियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, पता है आपको, वहां उस देश में मिस्रियों के, इजरायलियों के साथ मिलकर खाना नहीं खाते थे मिस्री लोग। उस देश में परमेश्वर का हाथ ऐसा ऊपर आया यूसुफ की ओर, उसकी धार्मिकता की ओर, उसके आत्मा में, कि यूसुफ वहां का फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। कितने लोग दूर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने हाथ को स्वर की ओर खड़ा करेंगे। हम इसी समय प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम गवाही भी शेयर कर सकते हैं, जैसे भी पास्टर सोनलाल हमें लीड करेंगे, हम वैसे जाएंगे। लेकिन कुछ समय मैं चाहता हूं, आज से अगर एक व्यक्ति भी यहां से अगर प्रार्थना का जीवन साथ लेके गया ना, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा यहाँ आना सच में सफल रहा। तो हम ये मानेंगे पास्टर सोनलाल का ये कंबाइंड चर्च करवाना सफल रहा। तो हम ये समझेंगे कि स्वर्ग में बड़ा काम है। अगर एक व्यक्ति भी यहाँ से वायदा करके जाता और सच में करता है अपना प्रार्थना का जीवन, छोड़ दो तेल की शीशियों के पीछे भागना, छोड़ दो पास्टरों के पीछे भागना। मैं सच में कह रहा हूं, मैं खुद पास्टर हूं, लेकिन पास्टरों के पीछे भागना छोड़ दो। अगर कहीं भागना है तो अपने प्रार्थना के जीवन की ओर भागो। हालेलुया। इसी समय स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे, स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे, स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे। ये 5 मिनट जो हो,
ये 5 मिनट जो हो स्वर्ग हिल जाए। जब बरनबास, जब साइलास और पौलुस ने मिलकर आराधना किया था तो सिर्फ उनकी जंजीरें नहीं, आसपास के जितने कैदी थे सबकी जंजीरें टूट गई थी। अगर हम आज यहाँ आराधना करेंगे, सिर्फ हमारी जंजीरें नहीं, इस पूरे एरिया की जंजीरें खुल जाएंगी। प्रभु का आत्मा दिखा रहा है कि ये कलीसिया यहाँ पर गलती से वापस नहीं आया है, ये कलीसिया यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक कारण से वापस आया। परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। कैंसर जैसी बीमारियाँ दूर होंगी, एड्स जैसी बीमारियाँ, मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ इस कलीसिया की सेवकाई में एड्स जैसी बीमारियां आने वाले समय में परमेश्वर दूर करवाएंगे। और यस कलीसिया से सच्ची शिक्षा होकर निकलेगी, सच्चा मार्ग होकर निकलेगा। मैं देख पा रहा हूं सिस्टर अमन के ऊपर प्रार्थना का लंबा एक बिछुआई की प्रार्थना करने का आत्मा स्वर्ग के ऊपर से आपके ऊपर आ रहा है इस समय। इसी समय आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी। आने वाले समय में परमेश्वर आपको जिस जगह पर ले जाने वाले हैं, आप अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर धोएंगी। आप अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर धोएंगी। आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है इसी समय यीशु के नाम में। ये वो साल है आपके बारे में की गई भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। ये वो साल है कि जब लोग देख पाएंगे जो भविष्यवाणियां आपके एंसेस्टर्स रिसीव करते आए थे वो आपके जीवन में पूरी होंगी यीशु के नाम में। एक प्रार्थना की फौज खड़ी हो रही है, एक प्रार्थना की फौज खड़ी हो रही है, एक प्रार्थना की फौज खड़ी हो रही है जो चमत्कार के लिए नहीं लेकिन उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। ऐसी फौज खड़ी हो रही है। कितने लोग उस फौज में भर्ती होना चाहते हैं? हाथ को ऊंचा स्वर की ओर उठाएंगे। इसी समय परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी मुझे अपना चेला बना ले लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम अपने मुकुट को इस समय उतार के तेरे पैरों में रखते हैं लॉर्ड फादर। हम तेरे सच्चे चेले बन सके, तेरे सच्चे चेले बन सके लॉर्ड फादर। इसी समय हम कुछ 2 मिनट आराधना करेंगे, लेकिन मैं सच में कहता हूं जब आप अपने संपूर्ण हृदय से, प्राण से, दिमाग से मिलकर आराधना करेंगे आप छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक आखिरी बार सब मिलके गाएंगे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। बस से केरल आत्मा के वरदान इस समय पर कुछ लोगों के ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर आत्मा के वरदान आ रहे हैं, आत्मा के वरदान आ रहे हैं। इसी समय मैं देख पा रहा हूँ सिस्टर रुपिंदर आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई का वरदान खोलने जा रहे हैं। मैं इस समय जब आराधना में आंखें बंद करी मैं देख पा रहा था कि सिस्टर रुपिंदर शेफी के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु के नाम में बंधन टूट रहे हैं लोगों के जीवन में। मैं चाहता हूँ सिस्टर रुपिंदर को रिक्वेस्ट करूंगा कि शेफी के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और इसी समय कुछ दर्दों का छुटकारा होगा परमानेंटली। जिस तरह से मूसा ने अमलेकियों को परमानेंटली हराया था, आज कुछ दर्दें परमानेंटली दूर होने वाली हैं। हालेलुया। नो मोर टेम्परेरी हीलिंग, परमानेंट हीलिंग। सब मिलके बोलेंगे, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ
हालेलुया। प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है कि कुछ लोगों के जीवन में भविष्यवाणी का आत्मा एक अलग रूप से इस्तेमाल करने वाला है। मैं स्पेसिफिकली देख पा रहा हूँ, ये जो बहन है, ये जो बेटी है पास्टर सोहनलाल जी के पीछे, इनके लिए प्रभु इस समय आपके ऊपर एक 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 भविष्यवाणी का आत्मा दे रहे हैं। आप भविष्यवाणी करेंगी, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के आने वाले समय का पता चलेगा। प्रभु आपकी जुबान का इस्तेमाल करेंगे, रेवलेशनरी नॉलेज इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रिसीव कर ले। हाथ को स्वर्ग की ओर ऊंचा खड़ा करके प्रभु आपके जीवन में दे रहे हैं इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर रिया के ऊपर भविष्यवाणी का आत्मा मैं देख पा रहा हूँ भारी रूप से ऑलरेडी काम करता हुआ। ब्रदर अमान के जीवन में, ब्रदर अमान के जीवन में अनयूजुअल प्रोफेटिक एक्ट्स आर कमिंग ओवर योर लाइफ। अनयूजुअल प्रोफेटिक एक्ट्स आर कमिंग ओवर योर लाइफ। अनयूजुअल प्रोफेटिक एक्ट्स प्रभु भविष्यवाणी के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने वाले हैं। आपके द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपकी बात के द्वारा लोगों के भविष्यों के राज, छुपे राज खुलने वाले हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अमान के लिए इसी समय यीशु के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्यार इनकी सेवकाई के द्वारा आ जाए, आपका प्यार इनकी सेवकाई के द्वारा आ जाए। बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक वरदान खुल रहे हैं इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर परमजीत के जीवन में चंगाई का वरदान आपके हाथों से, आपकी करी हुई प्रार्थनाओं से अब सिर्फ बुखार चंगे नहीं होंगे, आप कैंसर जैसी बीमारियों को देख पाएंगी चंगा होते हुए। आप बड़ी बीमारियां आपकी छोटी प्रार्थनाओं से ठीक होती देख पाएंगी। बड़े श्राप आपकी छोटी प्रार्थनाओं से कट रहे हैं यीशु के नाम में। बड़े श्राप आपकी छोटी प्रार्थनाओं से कट रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ लोगों के ऊपर वचन में गहरे जाना, टीचर की कॉलिंग मैं देख पा रहा हूं। वचन में गहरे जाने की कुछ लोगों के ऊपर स्पेशली आज मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर इस कलीसिया में से इस खरड़ के कलीसिया में से किसी व्यक्ति को खड़ा करने वाले हैं स्पेशली। और मैं पास्टर सोहनलाल की बात नहीं कर रहा, कोई और व्यक्ति खड़ा होने वाला है जो वचन की गहरी बातों को बाहर लेकर आने वाला है। हालेलुया। गहरी बातों को बाहर लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वेयर इज ब्रदर विशाल? ब्रदर भाई विशाल कहां पर है? इज आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। हम प्रार्थना करेंगे भाई विशाल के लिए यीशु के नाम में। प्रभु जी इसी समय जैसे तेरा बेटा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है बाहर अपने तेरे लोगों की, हम प्रार्थना करते हैं वचन में गहरे जाने पाए, वचन में गहरे न जाने पाए। आप में से कितने लोग वचन में गहरा जाना चाहते हो? हाथ को स्वर्ग की ओर उठाओ, स्वर्ग की ओर उठाओ। आपकी भूख बढ़ जाएगी यीशु के नाम में। 1 अध्याय नहीं, 2 अध्याय नहीं, 5 भी नहीं, 10 अध्याय शिक्षाएं और प्रचार सुनेंगे और किताबें पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको वचन में विद्वान बनाने जा रहे हैं। वचन, ये साल इस कलीसिया के लिए वचन में बढ़ने का साल होने वाला है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर संतोष के लिए प्रभु का आत्मा इस समय कह रहा है कि आपके हाथों से, आपकी जुबान से कुछ स्वर्गीय गीत उतरने वाले हैं। और जितना आपने देखा है वो ट्रेलर भी नहीं था। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो बड़ा काम परमेश्वर आपके संगीत से करवाने वाला है, आपके भजन से करवाने जा रहा है, आप बहुत गहरे रूप में जाने वाले हैं। और इसमें आपके परिवार की प्रार्थना आपका एक बड़ा किरदार अदा करेंगी। और स्वर्गीय गीत आपके जीवन में इस समय खुलने वाले हैं, स्वर्गीय गीत खुलने वाले हैं। आपके द्वारा बहुत से लोग सीखने वाले हैं, आराधना सीखने वाले हैं। जितना अभी तक आपने देखा है, प्रभु का आत्मा कहता है कि उससे कहीं गुना ज्यादा मैं करने जा रहा हूं तेरे जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। जिस सिस्टर के घर में कैंसर था, प्रभु का आत्मा इस समय मुझे उनके परिवार के लिए दिखा रहा है। हम सबको मिलकर उनकी तरफ हाथ करना है, उनकी तरफ हाथ करना है। डेथ इज स्क्रैचिंग द डोर्स। मौत इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन आज आप जहां खड़ी हैं उस जगह में सामर्थ है। अगर आप विश्वास से यीशु का नाम इस समय लेती हैं, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा लें और बाकी काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कैंसर चले जाए यीशु के नाम में, मौत चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
I see a counselor that Lord is going to use you. परमेश्वर आपको एक सलाहकार, एक बुद्धिमान सलाहकार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं ऑलरेडी, और ज़्यादा करने जा रहे हैं आपके जीवन में, यीशु के नाम में। हालेलुया। Thank you Jesus. यीशु तेरा नाम रहे, हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कुछ शादीशुदा लोगों के जीवन में मैं देख पा रहा हूं कि शैतान किस तरह से छोटे छोटे वार दे रहा है। स्पेशली आज की सुबह में परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं इसी समय ब्रदर गगन, ब्रदर अमान के ऊपर प्रार्थना करेंगे, उनके वैवाहिक जीवन के लिए। मैं चाहता हूं सिस्टर रुपिंदर और ब्रदर गगन मिलकर प्रार्थना करेंगे। शायद सिस्टर रिया भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रदर अमान के लिए प्रार्थना करेंगे। इनके जीवन में रिपेयरिंग जो परमेश्वर करने जा रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर जो रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। और जितने लोग शादीशुदा हैं अपने हाथ को ऊंचा उठाएं स्वर्ग की ओर, ऊंचा उठाएंगे स्वर्ग की ओर, और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर इस शादी को जिस तरह से तूने कहा है, जिस प्यार से तूने सींचा है, उस तरह से हम निभा पाए लॉर्ड फादर। हर एक बुरी याद चले जाती है यीशु के नाम में। हर एक उदासी खत्म कर रहे हैं यीशु के नाम में। एक रबड़ लेकर आपकी बुरी यादें मिट रही हैं यीशु के नाम में। अब और ज्यादा उदासी नहीं आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इसी समय, आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पास्टर सोहन लाल जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं परमेश्वर, हम इच्छा करते हैं हमारे हाथ खड़े रहे प्रार्थना में प्रभु। हम इसी समय पास्टर सोहन लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आगे लड़ाइयाँ आ रही हैं लॉर्ड फादर, उनमें तो उनके लिए एरन्स एंड हॉर्स प्रोवाइड करना, जो उनके हाथों को पकड़कर प्रार्थना कर सके लॉर्ड फादर, जो इनके लिए बैठने की जगह बना सके लॉर्ड फादर। हर एक टेंशन चले जाएगी यीशु तेरे नाम में लॉर्ड फादर। हर एक चिंता चले जाएगी यीशु तेरे नाम में। हर एक रिजेक्शन चला जाएगा यीशु तेरे नाम में। धन्यवाद करते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हम तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं।